My dear students, today we will learn a good poem by Sarojini Naidu. I have already taught you a lot of poem of Sarojini Naidu. Here it is the good poem, The Bangle Sellers. There is a lot of pic you can get about this bangle seller, but it is decorated, so luminous, so attractive, and so tantalizing one. Now I go line by line that you can understand the poem. First stanza here in this poem. First stanza. There is so many words are written here. You should learn the words also. Why I am not speaking here in Hindi? Yes, I shall speak you in Hindi when it's necessary, because you will develop in this atmosphere as a English students. Now, first the bangle sellers. Bangle sellers. Have you seen? आपने नहीं देखा कभी बैंगल सेलर्स? बैंगल सेलर्स उसको कहते हैं जो चूड़ियां बेचता है, चूड़ियां बेचता है. Here he described about the fair, about the temple fair. टेम्पल फेयर, जानते हैं टेम्पल के पास में बहुत सारे वेंडर्स बैठकर रंग बिरंगी चूड़ी बेचते हैं और चिल्लाते भी हैं कि ले जाओ. यहां पर सरोजिनी नायडू किस तरह लिख रही है, देखो. Bangle sellers are we who bear our shining lords to the temple fair. Bear temple fair. It is the way of a rhythmic expression. Here, we who bears. Bear means here carry. हम लोग कैरी करके लेके बेचते हैं क्या? आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर. वो लोग टेम्पल फेयर के पास में चूड़ियां रंग बिरंगी लगाकर सजाकर बेचते हैं और कुछ गांव में भी जाके बेचते हैं. नाउ यू सी दिस पिक्चर हियर, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंगल्स. यहां पर बहुत तरह तरह के बैंगल्स आप देखेंगे. अब वो चिल्लाते हैं, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल ऑफ लाइट. फिर कहते हैं, कौन है, लीजिए 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 बैंगल. आवर शाइनिंग बैंगल्स. यहां पर शाइनिंग चमकीला बैंगल्स है. बैंगल्स लोड हो गया. हु विल बाय द डेलिकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल ऑफ लाइट. कौन है, आओ भाई, कौन खरीदेगा. देखो क्वेश्चन मार्क्स है, कौन खरीदेगा एक बैंगल को. आइए, मेरा बैंगल दो डेलिकेट, बहुत नरम, बहुत नाजुक. व्हाई द बैंगल्स आर डेलिकेट? बिकॉज इट इज मेड ऑफ ग्लास. इट कैन बी ब्रोकन इन मोमेंट. सो डेलिकेट ब्राइट और चमकीला. रेनबो टिंटेड. Rainbow tinted. Here rainbow tinted, slightly colored. As you see, there is a lot of colors. There are 7 colors in the rainbow. Like this, the colorful tinted circle of light. इसके अंदर में लाइट का चमक है और lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. ये जो है lustrous happy token है, token of love, token of love, token of, यह है प्यार का तोहफा. रेडियंट चमक, लाइफ का, जिंदगी का चमक है. बिकॉज इन आवर इंडियन विलेज, इवन इफ इन द सिटी, द women's are prefer to bangles. They love bangles. बैंगल को पसंद करती हैं. lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. आओ, खुशनुमा लड़कियों के लिए और खुशनुमा औरतों के लिए. आइए आइए, खरीद लीजिए ये बैंगल. हैप्पी डॉटर्स हैप्पी वाइफ्स. हैप्पी डॉटर्स हैप्पी वाइफ्स. और दोज आर गोइंग टू बाय, दे आर हैप्पी. सो दैट आई वांट दिस, आई वांट दैट, लाइक दिस दे आर हैप्पी. Next, in this paragraph, you can know only the word bear
carry temple fire, the fire which is arranged near the temple. Here another delicate, नाजुक, नरम, soft और brittle. Brittle माने टूट जाने वाला, BRITLE, brittle. Here is the rainbow tinted, ये वर्ड भी अच्छा वर्ड है. यहाँ पर lustrous, 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 happy token है love का, for happy daughters. और वो जो हंसते हुए खेलते हुए लड़कियां आ रही हैं उनके लिए, और वाइफ्स और औरतों के लिए, यानी कि ये बैंगल्स है. ये पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव वन एंड इट आल्सो इंस्पायर यू टू लर्न दिस पोएम. इन दिस सेकेंड स्टैंजा द पोएटेस सेज इन वेरी टेक्निकल way of writing and composing of the poem. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Hear the word, you, meet. Some are meet. Here meet means, what do you mean? Meet means fixed, suitable. It is suitable. These are the suitable for the maiden's wrist. Maidens means here unmarried girl. Unmarried girl. The girl which is now going to marry but it will not marry. Here is the maiden. Another word, spinster. Spinster, virgin. नौजवान लड़कियों के रिस्ट के लिए सिल्वर एंड ब्लू, उनको कौन अच्छा लगेगा? सिल्वर कलर एंड ब्लू कलर which is given the happiness, joy and jovial mood to the girls. As the mountain mist, यहां पर एक दिखाया गया माउंटेन मिस्ट. अब देखिए माउंटेन है, उसका मिस्ट है. मिस्ट मतलब कुआसा, जिस तरह धुआं धुआं मालूम पड़ता है. खूबसूरत है, सिल्वर और ब्लू का मिक्सचर है. These bangles. Some are flushed. Some are flushed. Here, flushed means fresh. Some are flushed, fresh like the birds. Birds का मतलब petal. Now, look at this picture. Here, it is a petal. ये petal की तरह अभी खिला ही नहीं है. ये birds है अभी. इस तरह नाजुक. Some are flushed, fresh like a birds that stray, dream. जो ड्रीम किया जा सकता ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम. ट्रैंक्विल, पीस, शांत, एकदम शांत मालूम पड़ता. ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, जिस तरह वुडलैंड, वुडलैंड का मतलब ही होता है कि फॉरेस्ट या वुड्स. अगर वुड में हम लकड़ी में एस लगा देते हैं तो वो जंगल हो जाता है. इसी तरह यहाँ वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड का जो स्ट्रीम है, स्मॉल नैरो रिवर व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द वुडलैंड, इट इज वेरी पीसफुल और ट्रैंक्विल. इस तरह इनका देखने से लगता है कि एकदम सादगी भरा हुआ ये चूड़ियां है. समर एग्लो, ग्लो से एग्लो हुआ. ग्लो माने चमकीला, भड़कीला. विद द ब्लूम दैट क्लिप्स, with the bloom that clips यहां पर तो strongly, firmly hold, पकड़ा हुआ क्या? to the limp glory of a newborn lips. जिस तरह न्यूबॉर्न लिप्स होता है, ये जो चूड़ियां हैं यंग लड़कियों के लिए है. जैसा न्यूबॉर्न लिप्स, अभी नया नया जो पत्ता खिला है उस पत्तों के तरी छनछनाहट, खूबसूरती और वो ग्रीननेस है इसमें. देखिए ये जो पत्तों को देखिए जितना ग्रीन है, वो यहाँ कहना चाहते हैं लिम्पिड ब्यूटी, ट्रांसपेरेंट ब्यूटी इसके अंदर में है. लिम्पिड ग्लोरी, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट ब्यूटी ऑफ ए न्यूबॉर्न लिप्स. जिस तरह एक नया पत्ता अभी अभी खिला है, उसमें जितना छनछनाहट, खूबसूरती रहता है, वो जितना ग्रीन रहता है, उसी तरह ये भी
उतनी ही खूबसूरत है। ये जो स्टैंजा है, इन दिस स्टैंजा ही इज सेइंग अबाउट द मेडन, स्पिनिस्टर के लिए ये चीज बिक्री किया जा रहा है, यानी कि ये जो चूड़ियां हैं ये चूड़ी स्पिनिस्टर के लिए फिट है। नाउ आओ ले जाओ ये खूबसूरत चूड़ियां। नाउ हियर सर्जन नायडू pour out her own thoughts or expression very psychologically and technically. There is a lot of literary device. Now I am not going to say about the literary device. Then the other stanza. You come here, write down the other stanza as I can be able to express this stanza. Thanks. In this stanza, we will learn something more about the bangles. Here, some are like fields of sunlight kern. Some are, यहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं, some are like कैसे हैं? जैसे यहाँ सिमिली का इस्तेमाल कर रही हैं। Fields of a sunlight kern. ये जो देखिए सनलाइट कॉर्न का फील्ड जो दिखाया जा रहा है, सनलाइट हल्का से सूरज का किरण पड़ा हुआ है, और चाहे वो खेती कॉर्न का फील्ड, चाहे मकाई का हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, वो कैसा होता है? धान का जो खेत होता है वो गोल्डन कलर होता है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ने के बाद उसका कलर निखर जाता है। वो कहता है सनलाइट कॉर्न, सूरज से, सूरज के रोशनी से ढका हुआ कॉर्नफील्ड की तरह, यानी कि गोल्डन कलर में थोड़ा से सूरज का किरण मिलके जो रंग तैयार करता है, वो रंग का यहाँ पर चूड़ी है। मेड फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, यहाँ पर मॉर्न का इस्तेमाल किया गया, ब्राइडल मॉर्न। मीट फॉर ए ब्राइड, मीट फॉर अ ब्राइड, सुइटेबल फॉर ए ब्राइड, एक दुल्हन के लिए ये है। ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, ये ब्राइडल शादी कनेक्शन विद द रिलेटेड विद द वेडिंग सेरेमनी, उसका हर ब्राइडल मॉर्निंग के लिए है। मॉर्न का मतलब यहाँ पर मॉर्निंग। यहाँ पर देखो कॉर्न और मॉर्न, हर सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, कुछ ऐसे चूड़ी हुआ है, फ्लेम ऑफ, फ्लेम आग का जो शोला होता है, इस तरफ देखिए आग का शोला जो होता है, ऑफ हर मैरिज फायर। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, आप ऐसे गांव में भी जाते होंगे, देखे होंगे, जब सात फेरा लिया जाता है वो आग के सामने में लिया जाता है, आग रहता है उसमें घूमते हैं, तो उससे एक शोले निकलता है, वो क्या है? डिजायर है। यही फायर जो है डिजायर है, हर मैरिज फायर, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, ये उसके हार्ट का डिजायर है, बिकॉज शी इज नाउ गोइंग टू बी ए वुमन, और वो क्या करेगी? एक जिंदगी बसर करेगी, और एक अच्छा उसका जिंदगी होगा, वो उस ख्वाहिश से आगे बढ़ती है। इसका मतलब फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर विद द ह्यू ऑफ, ह्यू में यहाँ पर है कलर, रंग, ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, उसका हार्ट बर्निंग रहता है कि मेरा एक नया जिंदगी शुरू होगा। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड डियर, टिंकल, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड डियर, टिंकल। अच्छा, ये जो टिंकल है, चूड़ी का आवाज, खनखनाहट, ल्यूमिनस खूबसूरत, ल्यूमिनस टेंडर नरम, एंड डियर प्यारा, लाइक द ब्राइडल लव एंड ब्राइडल टीयर। ये चूड़ी क्या है? लाइक ए ब्राइडल, दुल्हन के खुशी के लिए, और दुल्हन के टीयर को, टीयर के लिए क्या है? जब दुल्हन जाती है अपने ससुराल तो उसके पहले तो खुशी रहती है, और गम क्यों है? इसको कहते हैं गम और खुशी का मिश्रण। यहाँ पर bride tear, bridal tear, tear because why? She already is going to the another's house, leaving behind her कीथ एंड कीन, अपने लोगों को छोड़ के जाती है, इसके लिए उसके आंसू उसके आंखों में है, मगर डिजायर लाइक द हार्ट्स का डिजायर लाइक द मैरिज फायर, उसका डिजायर बहुत अच्छा है, लाइक द ब्राइडल लाफ्टर, हंसी, एंड ब्राइडल टीयर। देयर इज द कलर्ड, डिफरेंट कलर, क्या है? बैंगल्स। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टैंजा,
ये जो है यहां पर मैरिड लाइफ को दिखाया गया। मैरिड लाइफ, यहां पर मैरिड लाइफ है। पहला वाला जो था वो था कुंवारापन। ये 3 स्टेज ऑफ लाइफ को बताया गया है। यहां पर जो है शादी के बाद उसका जिंदगी अब शुरू हो गया। वो आधा उम्र में पहुंची। सम आर पर्पल, वो चूड़ी पहनेगी। सम आर पर्पल एंड गोल्डन फ्लिक्ड, सम आर पर्पल एंड गोल्डन फ्लेक्ड। कुछ है पर्पल रंग का और सुनहरे रंग का लेयर्स में है, और ग्रे फॉर हु हैड जॉर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। वो अपने आधे उम्र को खो गई। दैट मीन्स शी इज नाउ ए गुड वन इन हर फैमिली। अपने फैमिली को चलाते हुए आगे बढ़ी। उसके लिए ये चूड़ी है पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, जिसका हाथ जो है लव एंड प्रोटेक्शन, पूरा घर के प्रोटेक्शन के लिए, उसके लव के लिए, हुज लव हैड ब्लेस्ड, जिसका लव आशीर्वाद पूर्ण है। किसके? घर के लिए। शी वॉज नोन एज द पिलर ऑफ द फर्स्ट पिलर ऑफ द हाउस। घर के सबसे बड़ी पिलर, मजबूत फर्म पिलर है जो घर को आगे चलाती है। एंड क्राइडल फेयर सॉन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। अच्छा, फेथफुल ब्रेस्ट, हेयर द वर्ड फेथफुल ब्रेस्ट, लॉयलिटी टू हर ओन फैमिली। और क्रेडल यहां पर कहता है किसको? क्रेडल कहता है वो जो झूला होता है। देखिए ये झूला कहते हैं क्रेडल। फेयर सॉन्स यहां पर लड़कियों को नहीं लाया। क्यों पोइट लड़की को नहीं लाया? बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन शी वाज राइटिंग दिस पोएम, सबसे ज्यादा आदमी का ख्वाहिश था कि लड़का हो मेरा। उसका हाथ एक कैडल में रहा लड़कों के लिए, ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और वो ज्यादा से ज्यादा फेथफुल रही अपने घर वालों के लिए। एंड सर्व हर हाउस होल्ड इन फेथफुल प्राइड, अपने घर को, अपने पूरा खानदान को सर्व की, उनके साथ में रही, फेथफुल बनकर रही और फेथफुल प्राइड के साथ में रही। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, वो अपने हस्बैंड के साइड में रह के भगवान को प्रार्थना करी कि इन लोगों को लंबी उम्र और खुशहाली जिंदगी दो। ये औरत के लिए क्या है? यहां पर वो चूड़ी है पर्पल एंड ग्रीन एंड गोल्डन फ्लेक्ड ग्रे। दैट मीन्स here the sketch or imagery of the bangles is very attractive one. At first, the poets say about the girls, those are unmarried, and they can choose these kinds of the bangles. Those are married or going to marry. ब्राइडल में शादी के बाद में एक नया जिंदगी शुरू करेगी, उसका भी एक जिंदगी। फिर उसके बाद में ये पूरा घरेलू औरत, वो औरत हो गई। ये 3 स्टेज, डिफरेंट स्टेज, फर्स्ट मिडिल लास्ट स्टेज ऑफ द वुमेन हैज बीन described here in this bangle sellers. Okay, I hope that you have taken interest and you also try to read this poem and try to remember all these words which already have been used in this poem. It will helpful for you to write down the summary, or you can use these words in speaking or writing to flourish your language. Thanks a lot.